16 दिसंबर जब शुरू होती है हमेशा मुझे महसूस होता है क्योंकि वी डोंट नो what is going to happen tomorrow. We don't know what's going to happen 6 hours from now. It was not based on ethnicity, not based on language. It was based on faith. उनके हीरोज और हमारे हीरोज और वो पृथ्वी राज चौहान की बात करते हैं। जब आप उनके सामने बात करते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की, वो उलझ जाते हैं। जो मुल्क है ये बना तो 1947 में था, लेकिन बंगाल में पाकिस्तान बना था 1905 में भी। कि जी उर्दू ज़बान जो है वो कौमी ज़बान हमारी जो है बंगाली होनी चाहिए, बंगाली भाषा होनी चाहिए। ये बताएं कि क्या उर्दू अगर बंगाल की ज़बान नहीं थी तो क्या पंजाब की ज़बान थी? आज बांग्लादेश में भी कायद की कौम है और पाकिस्तान में भी कायद की कौम है। हमने हमेशा जब भी हमने सुना भारत की ज़बानी, बंगालियों की ज़बानी, हमने कभी पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की ज़बानी नहीं सुनी। আসসালামু আলাইকুম, আমি রুবিনা মারুফ, ফ্যাক্ট নিউজ বাংলার সাথে আমি আশা করি अपनी भाई ভালো আছি। भाई साहब, पाकिस्तान 50 सालों बाद बोल चुका है फाइनली। जी हाँ, 1971 यानी कि 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने अपना एक बयान जारी किया है। जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे। 1971 की जंग को लेकर भी, उससे पहले भी, पर पाकिस्तान इसके बारे में कभी नहीं बोला। पाकिस्तान ने हमेशा से खामोशी अख्तियार कर रखी थी, पर 50 सालों बाद फाइनली पाकिस्तान ने खामोशी तोड़ दी और 16 दिसंबर 2025 यानी 2025 में एक बयान जारी किया। इस वीडियो में हम आपको वो दिखाते हैं। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा सेनेटर जावेद जब्बार को to address the audience. Stage yours. Thank you very much for this invitation. 16 दिसंबर जब शुरू होती है हमेशा मुझे महसूस होता है कि this is twilight. It's not morning. And this film, A Labor of Great Love, confirms that sentiment I have because it is very, very distressing to watch and to hear. And I compliment Aisha Sahiba for taking this initiative. It's a very brave and very courageous effort that she has made. At the same time, I just want to submit that while it's a privilege to be on this panel, ये जो मौजू है, इस मौजू के लिए 5-7 मिनट, शायद 5-7 घंटे, शायद 5-7 महीने भी पूरे नहीं, काफ़ी नहीं। क्यों? Because my humble thesis is that history is the biggest mystery. हम समझते हैं कि मुस्तक़बिल mystery है, क्योंकि we don't know what is going to happen tomorrow. We don't know what's going to happen 6 hours from now. Neither do we actually know history. The more you study history, the more you realize there are other facets of history which we didn't know about. And I am a humble student of history. I am studying 1971 from so many different perspectives. And the more I read, the more I'm fascinated by the complexity of what happened in 1971. For that, you have to go back. शुरू ही से हिंदुस्तान का ये मंसूबा था कि किसी ना किसी तरीके से इसको तोड़ना है। शुरू में तो उन्होंने कहा था 6 महीने भी नहीं टिकेगा पाकिस्तान, और पूरी कोशिश कर ली। ये मौजज़ा हुआ कि हम 24 साल तक साथ रहे, और क्या खूबसूरत तसव्वुर था पाकिस्तान का। वाह वाह वाह। हर और मुल्क दुनिया की तारीख में जो मजहब की बुनियाद पर बना है, उन सब में आप पाएंगे कोई लसानियत, कोई ज़बान की यकसानियत। अरब मुल्क देख लें, मलेशिया देख लें, इंडोनेशिया देख लें, टर्की देख लें। पाकिस्तान का अनोखापन ये है that it is the first Muslim majority nation state which was not based on ethnicity, not based on language. It was based on faith, affinity as fellow Muslims, but also respect for non-Muslims. Mr. Jinnah did not want to divide Bengal. He did not want to divide Punjab.
because he wanted large numbers of non-Muslims to also be Pakistanis. Why? Because he didn't say it, but the more I study, the more I realize. Non-Muslim Pakistanis are the original Pakistanis, because it was their land. Long before Islam's message came here, Buddhists, Jains, Hindus, Zoroastrians, Christians, they are the original Pakistanis. You can't be a nation without land. Muslims came later. So Mr. Jinnah had this vision of a unique country. Thank you very much. Sir, thank you very much. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम्बेसडर अफराज याब मेहदी कुरैशी साहब 16 दिसंबर 1971 जब हुआ तो हिंदुस्तान में बहुत से एनालिस्ट ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो है टू नेशन थ्योरी ये अरेबियन सी में हमने दबो दी है। ये इंडिया के एनालिस्ट, उनके मंत्री, उनके मिनिस्टर्स, बहुत से लोग ये कहा करते थे। I have served in the Foreign Service of Pakistan. I lived in New Delhi 7 years as Pakistan's Deputy High Commissioner and early as First Secretary. फिर मैं ढाका में पाकिस्तान का सफ़ीर रहा। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है उसी की बुनियाद पे मैं आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ कि उनके हीरोज़ और हमारे हीरोज़ और वो पृथ्वी राज चौहान की बात करते हैं, वो शेवाजी मरहट्टे की बात करते हैं। जब आप उनके सामने बात करते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की या और लोगों की, गजनी की, गौरी की, तो वो उलझ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, खाने डिफरेंट है। अभी जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में आज, पिछले साल अगस्त से जो चीज स्टार्ट हुई है, ये टू नेशन थ्योरी ही की तो मैनिफेस्टेशन है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, कि बांग्लादेश बन गया 71 में, लेकिन उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किए रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हैं अलग, ठीक है हम पाकिस्तान से अलग हो गए हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान नहीं हैं। और अभी आप बंगाल में आप चले जाएं, वो कहा करते थे पहले भी शेख हसीना साहिबा के दौर में कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश इज ऑल्सो अ पाकिस्तान, अ स्मॉलर पाकिस्तान। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं आजकल, you also have to look at it from the pretext and in the perspective of history. 1971 में सिर्फ नहीं हुआ था, 1971 बंगाल में 1911 में भी हुआ था, जब बंगाल की जो सेपरेशन है या डिवीजन है उसको अंग्रेज ने एनल कर दिया था। और पाकिस्तान जो मुल्क है ये बना तो 1947 में था, लेकिन बंगाल में पाकिस्तान बना था 1905 में भी। जब बंगाल के मुसलमानों ने कहा 1905 में कि हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग राइट्स चाहिए, तो 1905 में बंगाल की डिवीजन कर दी गई। ये 2-3 पॉइंट्स हैं नोट करने के। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो ये कि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ कंट्री, पाकिस्तान इज ऑल्सो एन आइडिया। पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ कंट्री, अ फिजिकल टेरिटरी और sovereign nation. Pakistan is an idea. Pakistan is an experimentation in Islamic statecraft for tomorrow. ये एक व्यू है, one can agree with it, one can disagree with it. Pakistan has had major successes
we are continuing, alhamdulillah. And whatever you're saying, whatever you're looking at today in Bangladesh, Bangladeshis look up to you. Many Bangladeshis, Pakistan and Bangladesh are Muslim brother countries. नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Distinguished panel, our future, Pakistani future, boys and girls, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much. आपने मिथ्स और रियलिटीज़ के दरमियान में मवाजना किया. परसेप्शंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, और हम इसको बार बार देख चुके हैं. रियलिटी नाम की कोई चीज़ जो है उसको तक़वियत नहीं मिलती. और हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोबेल्स, वो कहता था कि एक बड़े झूठ को इतने तवातर से बोलो और इतना लगातार बोलो कि वो सच बन जाए. कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान के साथ भी हुआ. अब सबसे पहले, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर उर्दू ज़बान, कि जी उर्दू ज़बान जो है वो कौमी ज़बान हमारी जो है बंगाली होनी चाहिए, बंगाली भाषा होनी चाहिए, बंगला भाषा. लेकिन उस बंगला भाषा के अंदर ये बताएं कि क्या उर्दू अगर बंगाल की ज़बान नहीं थी तो क्या पंजाब की ज़बान थी, क्या खैबर पख्तूनख्वा की थी, क्या बलूचिस्तान की थी, या फिर जो है कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, या फिर सिंध की थी? तो फिर उर्दू ज़बान वो थी जो कायदे आज़म ने 2 डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर बोला था कि उर्दू हमारी ज़बान है और इसको हम इसलिए राइज कर रहे हैं ताकि जो है वो तमाम कौमियतें जो हैं वो रंग नस्ल, तुम सिंधी, पंजाबी, बंगाली, पश्तून, पठान नहीं, बल्कि तुम एक मिल्लत हो. ये नारे को, इस कायद के हुक्म को किसने रिजेक्ट किया? शेख मुजीब ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन अब जो हम बात करते हैं वो ये देखते हैं कि कायद की कौम जो है आज 2 मुल्कों में रह रही है. क्योंकि शेख मुजीब का भी लीडर जो थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, कोई और नहीं. आज बांग्लादेश में भी कायद की कौम है और पाकिस्तान में भी कायद की कौम है. 2 कौमी नज़रिए को डुबोने वाले खलीज बंगाल के अंदर जो कहते थे, आज उनका जो है डिप्लोमेटिक, उनका पॉलिटिकल, उनका स्ट्रेटेजिक, डिफेंस और इसी तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो खलीज बंगाल में डूब चुका है. तब कायदे आज़म को आप लोग कैसा समझते हैं? कायदे आज़म हमारे हीरो थे ना, हैं आज भी. तो फिर ये बताइए कि जिस आदमी ने बांग्लादेश बनाया वो उनका हीरो होना चाहिए? क्या वजह है कि आज उनकी कौम ने उन मुजस्मों को गिरा दिया? शेख मुजीब को उसकी फैमिली समेत धान मंडी के अंदर उसके घर को जो है जला दिया, कत्ल कर दिया. तमाम की तमाम रिमेन्स जो थी, उसके तमाम जो असरात थे, सब ख़त्म कर दिए. तो फिर आज वहाँ फिर 14 अगस्त के ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के परचम बिकने वाला जो कोई मुल्क था तो वो बांग्लादेश था. पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लग गए. ये 2 कौमी नज़रिया वो डुबोएंगे, उनका बाप भी नहीं बोल सकता. आज जब वहाँ बांग्लादेश जो है उसने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है. आज जब वहाँ ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने किया था, कोई ऐसी बात नहीं है. एक हमारी डिवीज़न थी जिसके 12,000 ट्रूप्स वहाँ मौजूद थे. 12,000 ट्रूप्स जो थे, जब वहाँ इंसर्जेंसी हुई, ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ किया, कोई कौम क्या करती? आप अगर होते उस टाइम पे, फौज के कमांडर होते, आप क्या करते? इंसर्जेंसी को रोकते, दहशतगर्दी को रोकते, जबकि ट्रेसेस उसके अंदर मौजूद हैं. अगरतला की साजिश की बात की, किधर पहुंची? जहां की मिट्टी थी वहीं खाक पहुंची. अगरतला से ये साजिश शुरू हुई पाकिस्तान के खिलाफ, शेख हसीना वाजिद अगरतला भाग के गई. ये है हिस्ट्री, अपनी रिपीट करती है अपने आप को. इसलिए 12,000 ट्रूप्स थे. फिर जब वहाँ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ तो एयरलिफ्ट किए गए 2 और डिवीज़न, वो उस टाइम के ऊपर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करते,
वो वहाँ जो मामलात ख़राब हो गए थे, बिहारियों का कत्लेआम हो रहा था, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, नॉन बंगालीज के लिए मुश्किलात थी, और जो पाकिस्तानी लोग वहाँ रह रहे थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, नर्सेज और फैमिलीज जो रह रही थी, और पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जो घात लगाकर हमले हो रहे थे, उनको रोकते, इसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। इसलिए ये सब का सब जो था ये प्रोपेगेंडा था। फिर हिंदुस्तान ने जवाब पैदा किया, वहां जानबूझ के जो है वो कत्लेआम करना शुरू कर दिया। मुक्ति भानी जिसके 1 लाख ट्रेंड लोग थे, और ट्रेंड लोग वो थे जो भारतीय फोर्सेस के अंदर काम करते थे। जब 5000 भारतीय सोल्जर्स को मार दिया गया तो उन्होंने इंदिरा गांधी ने वहां कहा कि आई वॉन्ट टू सी माई फोर्सेज मार्चिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ ढाका, और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया जंग का। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जिसके पास जो है, एक तरफ हिंदुस्तान जिसके पास 300 तैयारे मौजूद थे और पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 तैयारे मौजूद थे। एक तरफ उनकी 3 कोर फौज थी जिसके अंदर 2 कोर, 4 कोर और 33 कोर थी, और बाद में 2 सपोर्टिव कोर और मौजूद थी, और दूसरी तरफ हमारे टोटल 34,000 सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे। इन सोल्जर्स के अंदर एक जज्बा था, क्या करते, वहाँ अपने लोगों को बचाते। वहाँ सामान रसद कोई नहीं था, सप्लाई लाइन 1000 मील दूर थी, नेवी के जो ब्लॉकेड था वो वहाँ कर दिया गया था। उनके पास एक एडवांस नेवी मौजूद थी, INS विक्रांत वगैरह मौजूद थे। मेरे पाकिस्तानी फौजियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। उन लोगों ने 2,70,000 फौज का मुकाबला किया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा मुक्ति भानी शामिल थे। कोई मुकाबला नहीं था। 34,000 मुकाबला 3,70,75,000 लोग, और उनके पास तमाम इक्विपमेंट मौजूद था। बहरहाल ये दास्तान जो है ये बड़ी ईमान फरोशों की दास्तान है, ये बहादुरों की कहानी है। लेकिन हमने हमेशा जब भी सुना, हमने सुना भारत की ज़बानी, बंगालियों की ज़बानी, हमने कभी पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की ज़बानी नहीं सुनी। तब भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और आज भी हमारे जहनों के अंदर हमारे ही इदारों, हमारे ही लोगों, हमारी ही रियासत, हमारे ही मुल्क के खिलाफ मामला चलते हैं। वो तो बंगाल था, साथ खड़े थे, हिंदुस्तान सारी जगह से मौजूद था। मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में कौन कर रहा है? तो फिर वो वहाँ बांग्लादेश को छोड़ देते? वो कभी नहीं छोड़ते। मुक्ति भानी के पीछे भारत का मकरू हाथ जो था, वो हमारा कल भी दुश्मन था, वो आज भी दुश्मन है। भारत इज ए टेररिस्ट कंट्री एंड वी मस्ट फाइट इट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।